Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today, this week, National Nutrition Week of 2021 that India is celebrating, we are going to discuss about that. Now, today's lecture is not wholly from the perspective of UPSC examination. Today's lecture is for those aspirants who are very focused when it comes to maintaining their health, who are very focused when it comes to maintaining or leading a nutritious lifestyle. And in today's lecture we will be discussing about different aspects of foods that you consume which can help you increase your immunity, increase and boost up your metabolism, and also will help you to lead a very healthy nutritious life. आज का लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो अपने हेल्थ को लेकर और अपने जो क्लोज्ड वंस हैं उनकी हेल्थ को लेकर कंसर्न रहते हैं. उन लोगों के लिए आज का लेक्चर डेडिकेटेड है जो कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं ओवर एनीथिंग, चाहे वो करियर ही क्यों ना हो. क्योंकि इफ यू डू नॉट हैव अ गुड हेल्थ और साउंड हेल्थ देन करियर विल ऑटोमेटिकली टेक अ बैक सीट. आप चाहे कितने भी बड़ी पोजीशन पे चले जाओ लाइफ में, अगर हेल्थ नहीं है सही आपकी तो आपका करियर जो है वो हमेशा पीछे ही रह जाएगा. ठीक है, तो इसलिए अगर लाइफ में सक्सेस पाना है तो सबसे पहली चीज है अपने माइंड को, बॉडी को हेल्दी रखना. माइंड और बॉडी हेल्दी रहेंगे, कोई एलिमेंट आप अपने लाइफस्टाइल की वजह से आप क्रिएट नहीं करोगे तो आप करियर में, लाइफ में बहुत आगे जाओगे. कुछ एलिमेंट्स होती हैं जो जेनेटिक्स की वजह से आती है, कुछ एलिमेंट्स होती हैं जो पोल्यूशन वगैरह की वजह से आती हैं, बट कुछ ऐसी डिजीज भी होती है जो हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आती हैं. हमें उन्हीं डिजीज को उन्हीं से लड़ना है, क्योंकि अगर वो हमारी वजह से, हमारी गलती की वजह से वो डिजीज बॉडी में घर कर लेती हैं तो फिर पछतावा भी हमें ही होता है. So now this National Nutrition Week is celebrated annually every year from 1st September to 7th September, and it spreads awareness about nutrition, its importance in our lives, and how to curb the problem of malnutrition and how to increase the immunity specifically in these tiring and testing times of COVID-19. So let us start discussing this. देखो, when we talk about nutrition, this nutrition week is to celebrate in order to raise awareness around eating healthy and nutritious. And you all know that when you eat healthy and nutritious now, your immunity increases, and immunity lays foundation for a very healthy body. Now when you are born, you come into this world, you enter this world with an immunity, already established immunity. But as you grow up, the kind of food that you consume also enhances that immunity that you were born with. जब आपका जन्म होता है ना तो एक सर्टेन लेवल की इम्यूनिटी के साथ आपका जन्म होता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप जो कंज्यूम करते हो ना उसका आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है. कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, डिपेंड करता है आप क्या खाते हो. Many students, in their right from their teenage years, they start indulging into junk foods, burgers, pizza, patties, Maggi, chowmin, fried food, samosa, etc., biscuits, packaged foods, processed foods. इससे क्या होता है that in turn decreases your immunity, and you do not realize that when you are very young, because तब आपकी body handle कर लेती है. When you are very young, your body handles it, whatever you are consuming, your body tries to process it. But after you cross the 25-year mark, जब 25 साल का जो मार्क है आपका वो क्रॉस कर लेते हो, after that your body starts giving up. धीरे धीरे क्या होता है, आपकी बॉडी गिव अप करना शुरू करती है, बिकॉज आपने अभी इतना जंक भर लिया है बॉडी में कि उसने जितना उसकी कैपेसिटी थी उतना प्रोसेस कर लिया, बट उसके बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे गिव अप करने लगती है. एंड देन व्हेन यू रीच 40, देन योर बॉडी शोज यू सिम्टम्स ऑफ व्हाट यू कंज्यूम्ड एंड हाउ इट इज नेगेटिवली इम्पैक्टिंग योर इम्यूनिटी एंड हेल्थ. देयर आर सो मेनी केसेस ऑफ हार्ट अटैक राइट एट द एज ऑफ 28, 27, 30. आजकल तो 27, 28, 25 साल की एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ immunity, strong immunity. So today we are going to discuss what all items you can consume in order to protect your immunity. अपनी immunity को अपनी तरफ से protect करने के लिए आप कैसे food items हैं जिनको आप consume कर सकते हो. And you all know that food helps maintain the integrity of our body, and certain foods are linked to boosting immunity. So we are going to discuss those certain foods which can help you boost your immunity. Now first, starting with water. Your body is 70% made up of water. Okay, right? तो इसीलिए हमें थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन बाहर से उस पानी में देना पड़ता है. सो फॉर दैट, सी, when you get up in the morning,
Start your day with at least drinking 2 to 3 glass of warm water. Do not push yourself. Do not just directly drink away 4 glasses, 5, 6 or 8 glasses water at one time. No. Start with 1 or 2 glass of water, warm water. देखो, the warm water and cold water, there is a difference between both. Cold water you have to avoid. Warm water, why you should take lukewarm water? Because it nourishes your throat. आपका जो throat region है ना वो dry नहीं रहना चाहिए, तो आपके throat region को nourish करता है lukewarm water. And in Ayurveda also it is mentioned the benefits and significance of drinking warm water throughout the day. So drink at least 8 glasses of water in the entire day. Now drinking enough water throughout the day makes you hydrated, and when you are hydrated, when your throat is hydrated, when your organs are hydrated, it is the key to a healthy lifestyle. तो इसलिए हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए. एंड सेकेंडली व्हेन यू ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे, इट डिटॉक्सिफाइज योर ऑर्गन्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल द किडनी, द लिवर, द इंटेस्टाइन्स. And you know that when organs get detoxified, that means all the toxins that you intook with the help of all the junk food and other items, maida and this and that, when your organs detoxify and free themselves from all those harmful products that you consumed, it helps you to increase your immunity only. Okay, so detoxification is very necessary. And detoxification का अलग से fruit cleanse और ये सब करने की जरूरत नहीं है. Just intake 8 glasses of lukewarm water throughout the day and your organs will start cleaning themselves. And when you are clean internally, then it shows externally also on your skin, on your eye health, right? Next step is consume as many green vegetables as you can, because green vegetables is the most, consuming these green vegetables, leafy vegetables, is the natural way to load up on every essential nutrient that is available in nature. For example, the essential minerals, vitamins, fiber. You know, fiber is very important for your gut health, for your intestinal health. It nourishes your cells and then improves the immunity also and your skin also. And for example, when we talk about bell peppers, you know, when somebody tells you to increase the intake of vitamin C, you think that we should take citrus fruits. No, if you consume bell peppers, one serving of bell peppers or Shimla mirch contains 153 milligrams of vitamin C. राइट देखो, विटामिन सी की जब बात आती है तो हम सोचते हैं कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको खाकर ही विटामिन सी बढ़ता है. नहीं, सब्जियों में भी विटामिन सी होता है. फॉर एग्जांपल अगर शिमला मिर्च की बात करें तो अगर 153 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन सी अकेले एक सर्विंग ऑफ शिमला मिर्च में होता है, यानी कि 2 शिमला मिर्च बनाकर आप एक सब्जी बनाओ तो उसमें 153 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी पाया जाता है. स्पिनिच की कैलोरीज कम होती है बट वो मेटाबॉलिज्म के लिए काफी अच्छा है, तो आपके वेट का भी इशू भी नहीं होगा अगर आप स्पिनिच कंज्यूम कर रहे हो, और आपकी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा. फॉर एग्जाम्पल द स्वीट पोटैटोज, शकरकंदी, उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कार्टिनोइड्स होते हैं, बेटा कार्टिनोइड्स होते हैं जो बॉडी में जो हार्मफुल रेडिकल्स हैं उनको प्रिवेंट करते हैं एंटर करने से. जैसे कि बीट रूट हो गया. बीट रूट में क्या होता है, ऑल्सो यू कैन इनटेक स्टीम्ड वेजिटेबल्स, यानी कि जो जितने भी हरे वेजिटेबल्स हैं आप उसको स्टीम करके खा सकते हो, बॉईल करके खा सकते हो. ठीक है. एंड बीट रूट की जब हम बात करते हैं ना, बीट रूट भी एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच होता है. जो रेड कलर का फ्रूट आता है, वेजिटेबल आता है बीट रूट, कहते हैं उससे ब्लड लेवल्स भी बढ़ते हैं. कहते हैं कि आप खुद कंज्यूम करके देखना, आपको पता चलेगा ब्लड लेवल्स भी इंक्रीज होते हैं, इन्फ्लेमेशन भी कम होता है, टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट होते हैं बॉडी से बाहर. So a good health comprises lots of fresh vegetables which are packed with vitamins and minerals that is good for your overall well-being. Okay. Now the leafy green vegetables are an important part of healthy diet. They are low in calories, so that is why when you consume the leafy vegetables, your weight will not increase. Okay, but your metabolism, immunity will increase. Your health will become very good. Eating a diet which is rich in leafy greens can offer numerous health benefits, including reduced risk of obesity, heart disease, high blood pressure, and mental decline. So now there are many other healthy reasons why we should consume the leafy green vegetables. For example, the vegetables are rich in vitamin A, C, and K. To reap the most benefits when you eat the vegetables raw or steamed vegetables. ओके, अगर आप खाते हो वेजिटेबल्स रॉ या स्टीम्ड, उससे क्या होता है, उसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो है ना वो और ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाता है. व्हेन यू कुक द वेजिटेबल्स, द न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऑफ द वेजिटेबल्स रिड्यूसेस. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड बॉइल्ड, स्टीम्ड और रॉ वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ.
नाउ दी सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देखोगे इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज ईट प्रोबायोटिक्स. आपने प्रोबायोटिक्स के बारे में सुना होगा. what are the products which have probiotics in them? See, we have छाछ, we have लस्सी, we have दही, योगर्ट, इसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं. These probiotics, they play a very vital role in keeping your immunity intact and promote the growth of healthy bacteria which is found in your gut. आपके गट में, आपके पेट में जो हेल्दी बैक्टीरिया है ना, उसको इंक्रीज करता है प्रोबायोटिक, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है. ठीक है. सो प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड थ्रू फर्मेंटेड फूड्स. इडली होती है ना, उसमें भी प्रोबायोटिक्स होता है. जितना भी फर्मेंटेड फूड है, डोसा, रागी डोसा, ज्वार डोसा, उसमें प्रोबायोटिक होता है. सो दे कैन बी कंज्यूम थ्रू फर्मेंटेड फूड्स और सप्लीमेंट्स. एंड आवर डाइट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन द कॉम्पोजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द गट माइक्रोबायोटा फ्रॉम आवर अर्लीस्ट ईयर्स. शुरू में आपको बोलते हैं ना, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए. क्यों? उसके प्रोबायोटिक्स को बढ़ाने के लिए. Probiotics promote a very healthy balance of gut bacteria. Okay, and probiotics help balance the friendly bacteria in our digestive system. That is why it is said that when you take your lunch, do not intake water along with your lunch, because then it will cause bloating. खाना खाते वक्त पानी पीते हैं ना, उससे ब्लोटिंग होती है, पेट फूलता है. वो गलत है बॉडी के लिए. ठीक है, ब्लड के लिए गलत है. So when you take your lunch, keep a glass of छाछ with you, or keep a cup of or katori of dahi or yogurt with you. Okay, and probiotic also improves some mental health disorders. For example, consuming 100 grams of probiotic yogurt every day can generally benefit your health, can reduce depression, anxiety and stress. It may also reduce the severity of certain allergies. Probiotic food may give your immune system a very important boost, and it can hinder the growth of harmful gut bacteria. और प्रोबायोटिक में ना एक ऐसी एबिलिटी होती है जो डायरिया कभी आपको ना हो, इसको मेक श्योर करेगा. ठीक है, डायरिया हो भी तो उसकी सिविरिटी कम हो, तो प्रोबायोटिक डायरिया को भी मैनेज करता है. तो फर्मेंटेड फूड, योगर्ट, दही, छाछ, लस्सी, all of these have probiotics, and probiotics are good for healing your digestive system and reducing the bloating that happens in your stomach. ओके, फूड एलर्जी से प्रोटेक्शन भी करता है प्रोबायोटिक. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कम करता है बॉडी में प्रोबायोटिक, एंड आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेगा प्रोबायोटिक्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कंज्यूमिंग फ्रेश सीजनल फ्रूट्स. नाउ देखो, ये जो सीजनल फ्रूट्स है ना, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ. यू हैव टू कंज्यूम सीजनल फ्रूट्स. नाउ ओके, वन मोर थिंग, इन द प्रोबायोटिक एरिया ना, आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स. व्हाट आर द फूड प्रोडक्ट्स विच हैव प्रोबायोटिक्स? फॉर एग्जांपल, इडलीज have probiotics, dosas have probiotics, apple has probiotic, banana, now consume only one banana in a day, एक से ज्यादा नहीं. ठीक है, only one banana. apple can be consumed 2 in a day. ठीक है, एक दिन में 2 एप्पल ले सकते हो, बनाना 1. इडलीज 4 इडलीज, डोसा एक से ज्यादा डोसा नहीं. ठीक है, 1 डोसा इन अ डे. देन योगर्ट जो होता है उसमें भी प्रोबायोटिक होता है. देन गार्लिक, लहसुन जो है उसमें प्रोबायोटिक है. पिकल कहते हैं ना, सी इन आयुर्वेदा ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेंशन्ड. प्लस योर एंसेस्टर्स हैव आल्सो कंज्यूम दीज थिंग्स. पिकल कहते हैं ना, दादी माँ क्या बोलती है, खाने के साथ अचार रखा करो. क्यों? टेस्ट के लिए नहीं, अचार में प्रोबायोटिक होता है फॉर दैट. अनियन, कुछ लोग अनियन कंज्यूम करते हैं खाने के साथ, उसमें प्रोबायोटिक होता है. फिक्स में, अंजीर में प्रोबायोटिक होता है. चीज में प्रोबायोटिक होता है. ऑलिव में प्रोबायोटिक होता है. डार्क चॉकलेट, नाउ व्हेन यू कंज्यूम चॉकलेट्स, डॉक्टर्स ऑलवेज से डू नॉट कंज्यूम नॉर्मल चॉकलेट, कंज्यूम डार्क चॉकलेट इफ यू वांट टू, बिकॉज डार्क चॉकलेट हैज प्रोबायोटिक. एस्पैरागस में भी प्रोबायोटिक होता है. ठीक है. नाउ ओवर हियर कंज्यूम फ्रेश सीजनल फ्रूट्स. देखो, सीजनल फ्रूट्स ही लेने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी ना सीजन के हिसाब से जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, आपकी बॉडी भी सीजन के हिसाब से चेंज होती है. योर बॉडी ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू सीजन्स. सो दैट इज वाई सीजनल फ्रूट्स यू शुड इनटेक. They have high nutritional value. Seasonal fruits and vegetables, they naturally ripen in the sun. They are fresher, they taste better, they have the highest amount of phytonutrients, antioxidants. Okay, and they produce less fruits which are stored for long period of time, and then they are transported back to the states. Those have less nutritional value. That is why it is said unseasonal foods you should avoid and seasonal foods you should consume. The fruits are superfoods. They are wholesome, but do not consume the fruits post sunset.
because they see these fruits have a complex carbohydrates, and after sunset na your body's digestive fire slows down, so it is very tough to process these complex carbohydrates, and then that intake leads to bloating or allergies or increase in weight etc. So that is why consume fruits during the day. फ्रूट को ना दिन में खाना चाहिए, शाम के बाद नहीं, यानी कि आप जो सनसेट हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बॉडी की डाइजेस्टिव अग्नि जो जठर अग्नि है वो कम हो जाती है, उससे आपके बॉडी इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है प्रोसेस नहीं कर पाता, तो इससे ये स्टोर होने लगता है, इससे क्या होगा आपके शुगर लेवल में स्पाइक हो जाएगा, पेट फूलने लगेगा, तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। द टाइमिंग ऑल्सो मैटर्स, मेक श्योर दैट यू हैव द हेवीएस्ट लंच बट eat your dinner like a beggar, eat your lunch like a king and consume your dinner like a beggar। क्यों ऐसा कहा जाता है? बिकॉज जब आप लंच ज्यादा खा लेते हो डाइजेस्टिव अग्नि उस वक्त फायर जो है वो काफी स्ट्रांग होती है तो पच जाता है, बट अगर आप डिनर हैवी करते हो, रात को डाइजेस्टिव फायर आपकी वीक होती है तो वो डिनर पच नहीं पाता, जिससे ब्लोटिंग होती है, वेट गेन होता है और बाकी तरीके के बीपी और हार्ट रिलेटेड इश्यूज आते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कंज्यूम नट्स इन द ब्रेकफास्ट। देखो द नट्स आर कंसिडर्ड एज दी सुपर फूड फॉर योर बॉडी अलॉन्ग विद द फ्रूट्स। फ्रूट्स के साथ साथ जो नट्स होते हैं ना उनको भी सुपर फूड बोला जाता है, ठीक है। सो एंड नट्स आर बेनिफिशियल नॉट फॉर जस्ट योर ओवरऑल हेल्थ, दे आर बेनिफिशियल फॉर योर hair also, skin also, okay, and eyes also. So let us understand what are the benefits of consuming nuts. Nuts means the cashews, the peanuts, the black raisins, the normal raisins, the walnuts, the almonds etc. एंड नट्स में ना क्या होता है जो आपके गुड फैट्स पाए जाते हैं, गुड फैट्स आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, गुड फैट आपके जो जॉइंट्स है बॉडी के उनको भी नरिश करता है, ओके। सो ईटिंग नट्स on a regular basis improves your health in many ways. For example, it reduces the risk of diabetes, heart disease, cholesterol, and the nutritious high fiber which is present in the nuts, they also help you to burn your calorie. ओके वैसे तो कैलोरी काउंट इसका हाई होता है बट वेट लॉस में ये हेल्प करता है, क्योंकि आप नट्स लोगे तो आपकी भूख जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, फिर आपको एक्स्ट्रा भूख नहीं लगती, और एक्स्ट्रा भूख आपकी वेट बढ़ाता है, जब एक्स्ट्रा भूख ही नहीं लगेगी तो वेट कैसे बढ़ेगा। सो नट्स आर अमंग्स दी हेल्दीएस्ट फूड्स दैट यू कैन कंज्यूम। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर द बेनिफिट्स ऑफ ईच एंड एवरी नट, ठीक है। हर एक नट का एक बेनिफिट हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश्यूज, ये क्या है, ये है आपके कैश्यूज, काजू जिसको बोलते हैं, ठीक है। दे आर लो इन शुगर, ओके, दे आर रिच इन फाइबर, ओके, ऑल्सो दे आर हार्ट हेल्दी फैट्स, ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ओके। इट हैज गुड अमाउंट ऑफ फैट्स, प्लांट प्रोटीन है ये, कैश्यू मिल्क पीने के लिए कहा जाता है ना क्योंकि वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसके अंदर प्रोटीन है बट ये प्लांट नेचुरल प्रोटीन है जो आपको मिल रहा है, ओके। देन इट इज अ गुड सोर्स ऑफ कॉपर, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, मैंगनीज का भी ये गुड सोर्स है। इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी ब्रेन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो दैट इज वाई कैश्यूज, अब यू कैन कंज्यूम 6 कैश्यूज इन अ डे, आप एक दिन में 6 कैश्यूज ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज आमंड्स, नेक्स्ट आपका आ जाता है नट आमंड्स। Almonds contains lots of healthy fats, fiber, protein, magnesium and vitamin E which is good for your eye, hair and brain. It also include low sugar level, इसके अंदर sugar level बहुत कम होता है. It can reduce your hunger, it can promote weight loss, it also reduces blood pressure, it also helps in lowering down your bad cholesterol levels. So that is why almonds are very good. It basically it also prevents hair fall, hair fall को भी prevent करता है, आपके heart health को protect करता है. It is gluten free, so it is gluten free, naturally 100% gluten free. Okay, and also 6 grams of power packed protein also is present in almonds. इसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन है almonds के अंदर. तो अगर आप 6 almonds रोज ले रहे हो और soaked almonds अगर आप ले रहे हो तो that is equally beneficial for you. Then comes these walnuts. अब आती है walnuts की बात. Again, अगर आप walnuts ले रहे हो 4 walnuts in a day, 4 walnuts in a day.
okay, in breakfast. They are rich in antioxidants, super plant source of omega 3 इसमें पाया जाता है, and because omega 3 is found in this, it also promotes hair growth on your head. Then it supports weight control, it may reduce risk of some kinds of cancers, it promotes a healthy gut, and it may help manage the type 2 diabetes. ओके, ब्लड प्रेशर को भी लो करता है. तो कम से कम 4 वॉलनट्स आप पूरे दिन में खाओ तो बहुत बढ़िया रहता है आपके लिए. ठीक है. देन वी हैव रेजिन्स. फिर हमारे पास आते हैं रेजिन्स. रेजिन्स में स्पेसिफिकली आई विल सजेस्ट ब्लैक रेजिन्स. ब्लैक रेजिन्स को अगर आप 6 ब्लैक रेजिन्स यू सोक इट इन वाटर ओवरनाइट एंड देन दी कंज्यूम द वाटर अलॉन्ग विद द रेजिन्स. ओके, जिस पानी में इसको सोक किया था खाली पेट पे उसको पियो और रेजिन्स को कंज्यूम करो. दैट प्रमोट्स वेरी वंडरफुल आई हेल्थ. आपके आई हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट्स योर आई, इट प्रोटेक्ट्स योर हेयर, इट प्रोटेक्ट्स योर बोन्स, योर जॉइंट्स. तो जब आप 25 का मार्क क्रॉस करोगे ना तो आपको जॉइंट से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा. ओके. एंड देन लास्ट ऑफ ऑल ईट लेग्यूम्स. लेग्यूम्स जो आपकी दाल होती है ना उसमें पाया जाता है, कॉर्न में पाया जाता है. तो दाल तो लेनी ही लेनी है यू, बिकॉज इट इज द नेचुरल एंड हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन दैट इज फाउंड. ओके, नेचुरली इन नेचर. तो कहते आर मदर्स दे फोर्स अस एवरी टाइम टू ईट आवर दाल. वाई? बिकॉज दे हैव पावर पैक्ड प्रोटीन. इसके अंदर प्रोटीन इतना हाई होता है कि आपको प्रोटीन पाउडर पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है अगर आप डेली सही टाइम पर अपने दाल खा रहे हो. ठीक है. तो जितनी भी दालें हैं उसको अच्छे से कंज्यूम डेली करना है. फ्रूट्स को आपको शाम के बाद नहीं खाना है. एंड इवन इफ यू आर इन टेकिंग फ्रूट्स, मेक श्योर दैट यू इन टेक 1 फ्रूट एट अ टाइम. एक फ्रूट एक टाइम पर. अगर एप्पल है तो सिर्फ एप्पल, उसके साथ और कुछ मिक्स नहीं करना. डू नॉट मिक्स द फ्रूट एंड ईट. 1 फ्रूट एट अ टाइम. एंड च्यू करना है, ये नहीं सीधा गल्प डाउन कर लिया. अच्छे से चबाओ. मेक convert whatever you eat in your mouth with the help of your teeth into juice. यानी कि आपके मुंह में इतना चबाओ कि वो जूस में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसको निगलना है. ठीक है. इससे आपका जो प्रोसेसिंग होती है ना स्टमक में, लिवर में, वो जल्दी हो जाती है. तो आपका पाचन भी क्रिया अच्छी हो जाती है. ओके. एंड व्हेन आई सजेस्ट यू टू ड्रिंक वाटर, डू नॉट गल्प डाउन द इंटायर वाटर बॉटल और इंटायर ग्लास. ड्रिंक सिप बाय सिप. आपको सिप बाय सिप पानी पीने की आदत डालनी पड़ेगी. एंड व्हेन यू ड्रिंक वाटर, डू नॉट स्टैंड एंड ड्रिंक. सिट ऑन द फ्लोर एंड ड्रिंक योर वाटर. ओके. जमीन पे बैठ के वॉट एवर यू ईट, सिट ऑन द फ्लोर, नॉट ऑन डाइनिंग टेबल्स. सिट ऑन द फ्लोर एंड ईट. जमीन पर बैठ के खाओ. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल न्यूट्रिशन वीक. आई गेस now you are clear of what to eat and what to avoid and how much in quantity you should eat. Also you can follow me on Instagram. आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हो. On Instagram the ID is Sharma's Universe. Okay, ID जो है वो है Sharma's Universe. तो आप इस अकाउंट पे यू कैन फॉलो मी बिकॉज आई शेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट हेल्दी फैक्ट्स, डाइट्स एंड एवरीथिंग ऑन Instagram in order to spread the knowledge that I have on nutrition with my एस्पिरेंट्स. ओके. तो आप इस आईडी पे शर्माज यूनिवर्स पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिशन दैट यू कैन गेट फ्रॉम द फूड दैट यू ईट. आई होप you enjoyed this lecture, and on this note we are wrapping up the session. Eat healthy and stay fit.